everyone. Thank you so much for joining in. I hope you're doing good. I am Sonal Jain, your host, and I welcome you to a brand new episode of Gupshup with Pals. आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर वायु श्रीवास्तव, जो है एक म्यूजिक कंपोजर, सिंगर एंड लिरिसिस्ट। 2009 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और तब से हमें काफी सारे गाने दे चुके हैं। कुछ गानों के नाम बताऊं तो वो है श्रृंगार, बीट पे बूटी, बन्नो तेरा स्वैगर, राख, मेरे लिए तुम काफी हो, बातें करो, जैसे कई सारे अच्छे गाने। इनसे और बात करने के लिए और इन्हें और जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप भी उतने एक्साइटेड होंगे इस एपिसोड के लिए। सो लेट्स गो। Hi, Vayu. How are you? First of all, Hi, Sonal. I'm good. Thank you for having me on Gupshup with Pals. Yes. it's good. So firstly, let me tell you one thing very clear that this session I have really manifested it because from the very when I started this podcast, I thought कि यार we should have a conversation because क्या होता है ना कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं हमेशा ना उन लोगों से बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ उनके वर्क को जिनके साथ मैं कनेक्ट हो पाती हूँ। सो सम ऑफ योर सॉन्ग्स आई हैव लिसन्ड टू, सो आई हैव थॉट कि यार व्हाई शुड वी डोंट हैव कॉन्वर्सेशन। सो या दिस इज टोटल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हियर गोइंग ऑन। Thank you. Tell me, which songs have you liked? Okay, so first of all, Baatein Karo was a big hit. That and Tofa, and then that one Mascara, and then congratulations for the song. Yesterday, only one song has been released. That's pretty much an item song. We had to do a spoofy item song, so we did it like that. Yeah. I've listened to it, and I hope that it has a great hit in the future. I hope it does. Right now I'm planning to launch my own songs, more of my independent stuff. I'm drifting away from Bollywood. Not because Bollywood is bad or something, but just that I'm not very keen on the briefs that I get from Bollywood, and I want to explore my own stuff more, like my own kind of songs that I want to do. So right now I'm focusing more on independent stuff. That's why you see that the frequency of my Bollywood work is getting reduced. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि आपके सॉन्ग्स ना मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट लाइक बातें करो एंड मस्कारा एंड तोहफा एंड ऑल ऑफ दैट योर इंडिविजुअल सॉन्ग्स, मुझे दैट इज ऑन माय पॉडकास्ट इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रिलीज। Seriously. Yeah, okay. So I firstly wanted to talk to you about you have started your career back in 2009 or 10 maybe. So what was your first break like, and how you reacted, how you managed to get that first break, and what is the whole story behind it? My first break, huh? Yeah. So I was studying in Pune, Symbiosis Institute of Mass Communication. I studied there, and when we came out of the college 2009, it was recession. So we were not getting any jobs. We didn't get any placements and anything. So wherever we had interned earlier, that's where we went to asking for jobs. So luckily, I had interned at two places. One at Squircle Production, second at Adhikari Brothers, and both were willing to take me. And they but Adhikari Brothers was giving me a better package. So I went with them, and I started as a promo producer. So when I moved to Mumbai, I was not sure that I will be doing just songs. I wanted to become a filmmaker only, and that's what I studied for. And or something to do with production. So जब मैं आया और मैंने प्रोमो प्रोड्यूसर की तरह काम शुरू किया, तो मैं लिख रहा था प्रोमोज, डायरेक्ट कर रहा था प्रोमोज, और बीच बीच कभी कभी उन लोग एक नया चैनल लॉन्च कर रहे थे मस्ती करके। तो उस चैनल के लिए भी मुझे काफी कुछ आइडिएट करने का मौका मिला। उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, उनका टैगलाइन क्या होगा, वो सब मैं नहीं बनाया, मेरे ही कॉन्सेप्ट से। तो मतलब कारपेंटर बी, वी यूज अ भंवरा कारपेंटर बी टू एक्चुअली डिपिक्ट द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ द चैनल। तो वो सब काम कर रहा था मैं, और मैं गाने बचपन से लिखता था। मतलब मुझे शौक था गाने लिखने का। तो मुझे क्या हुआ, एक दोस्त था, वो एक एल्बम लॉन्च करना चाहता था। तो उसमें वो वैसे तो इंग्लिश गाने थे सारे, उसमें एक हिंदी गाना था। तो उसने एक हिंदी गाने के लिए मुझे बुलाया, और मैं मतलब वहां गया उनके लिए हिंदी गाना लिखने के लिए, और हिंदी गाना उनको पसंद आया। तो जिनसे मिला मैं, जो प्रोड्यूसर थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनके साथ वो काम कर रहा था, जो लोग गाना प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो उनको मेरा लिखना पसंद आया। तो they were also further pitching for a Ram Gopal Verma's film as a background music duo. तो उन्होंने ऐसी धुन बनाई थी, और राम गोपाल वर्मा को प्रेजेंट करने के लिए, उनकी रण करके फिल्म आ रही थी 2010 में फिल्म, तो उसमें प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा चंक बनाया जिसमें थोड़ी लिरिक्स जैसा कुछ चाहिए था उनको।
तो उनको मेरे बारे में पता था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम कुछ करके दो। तो वो मैंने ऐसे आधा गाना लिख के दिया, एक वर्स लिख के दिया था, तो वो राम गोपाल वर्मा को बहुत पसंद आया। राम गोपाल वर्मा एंड आई हैव हर्ड दैट probably Amitabh Bachchan ji also liked it. So they quite liked the lyrics what I wrote. It was pure Hindi kind of a thing. तो वो लिख के दिया मैंने, उनको काफी पसंद आया। तो राम गोपाल वर्मा ने मुझे स्पेशली मैसेज भेजा, तब तक मैं उनसे मिला भी नहीं था। उन्होंने मैसेज भेजा मुझे कि योर लिरिक्स फॉर द रन सॉन्ग्स आर फैबुलस, कम एंड मीट मी। तो मैं उनसे जाके मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हर फिल्म में मैं चाहता हूँ कम से कम एक गाना तुम लिखो ही। तो मैंने कहा वाह यार, ये तो मतलब कमाल की बात हो गई, मैं तो सोच नहीं था। तो उस समय तो उनका वही गाना, पहला पहला गाना तो मैंने फिनिश किया था। मेरी जो एक्स थी, मतलब मेरी उस समय जो गर्लफ्रेंड थी, शी पुश्ड मी अ लॉट, शी सैट विद मी, शी हेल्प मी आउट राइटिंग इट। एंड हम लोग कैफे कॉफी डे में बैठे रहते सारा दिन, और एक ही गाना लिखने के लिए हमने 2-2 3-3 दिन लगा दिए। और वो लिख के, मतलब मैंने लिखा, ऊपर से बहुत पुश किया मेरे को, वो कॉफी वॉफी ला के देती थी। तो अभी तो एक्स है वो, पर कोई बात नहीं। पर शी हेल्प मी लॉट, एंड देन I worked on it further and that song came out and they liked it quite much. तो जब वो हुआ, तो मैंने 2-3 साल तो मैंने सोचा नहीं कि मैं लिरिक्स लिखूंगा या गाने बनाऊंगा। पर राम गोपाल वर्मा सिर्फ उनके लिए मैं गाने लिख रहा था। 3-4 फिल्मों के लिए गाने लिखे मैंने उनके। और फिर मैंने देखा कि गाने चलते तो थे नहीं, तो वो वहां तक तो सब ठीक था कि मैं प्रोमो प्रोड्यूसर ही था और साथ में साइड बाय साइड लिरिक्स लिख रहा था। पर फिर मैं जब प्रोमो प्रोड्यूसर था, तो मुझे अचानक से बोरियत आ गई मेरे काम में। तो मैंने वो काम छोड़ दिया, और मैंने जब वो काम छोड़ा था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब मैं एकदम गरीब था, मतलब सेविंग्स ही वो लिमिटेड थी कि मैं 4 महीने चल जाऊं तो हो जाए, नहीं तो फिर बर्बाद हुआ। ऐसा ऐसे टाइप की सेविंग्स भी थी मेरी। तो वो मैंने जब काम छोड़ दिया, तब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड ट्राई हार्डर टुवर्ड्स सॉन्ग्स, सॉन्ग राइटिंग, विच इफ नॉट प्रोमो प्रोडक्शन। तो मैंने वो कोशिश की, और मुझे फिर से मौका मिला, दिखाई ब्रदर्स के थ्रू ही मौका मिला, ऊपर ऊपर रहने दे करके गाना करने का मौका मिला तनिष्क बागची के साथ। और उसके पहले भी तनिष्क के साथ में 2-4 गाने ऐसे कर रहा था, मतलब कुछ एक शो वोज के लिए पिच विच करते थे हम लोग, ऐसे काम हम लोग कर रहे थे, दोस्त बन गए थे। तो वो करते करते ऊपर ऊपर रहने दे करने का मौका मिला। ऊपर ऊपर रहने दे बिकेम एन अंडरग्राउंड हिट। एंड फिर वो गाना आनंद सर ने सुना, और आनंद सर ने फिर तनु और सोनू रिटर्न्स के लिए बुलाया कि तुम कोई गाना पिच करो, कोई हिट गाना पिच करो। तो तनु और सोनू रिटर्न्स का म्यूजिक तो वैसे कृष्णा ने किया था, और आज शेखर ने लिरिक्स लिखे थे। और हमें एक गाना करने का मौका मिल गया, वन्नो तेरा स्वैगर, और वो गाना भी हिट हो गया। तो जब वो गाना एक बार हिट हो गया, तो फिर हमने यही करना शुरू कर दिया। तो मैं फिर तनिष्क के साथ शुरू में काम किया, फिर देन वी आल्सो ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज द वे वी वर वर्किंग वाज क्वाइट डिफरेंट। तो फिर उसके बाद फिर आई गॉट मोर इनटू, आई डिड सम टाइम इन फिल्म्स एंड ऑल। पर फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरा जो स्पेस है थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट है, जहाँ पे मैं जिस तरह गाने करना चाहता हूँ, बॉलीवुड मुझे उसकी इजाजत देता नहीं है। और मैं सब नौकरी वोकरी छोड़ के आया था ये काम करने के लिए। तो मैं पैसों के लिए तो ऑब्वियसली अपने आप को नहीं बेच पा रहा था, तो मैं अपना काम करना चाहता था। इसलिए मुझे फिर खुशकिस्मती कि सोनी म्यूजिक ने मुझे साइन कर लिया, और मुझे बातें करो रिलीज करवा दिया, तोहफा रिलीज करवा दिया। ऑल्दो मुझे नागिन देना पड़ा उनको ये सब करने के लिए, लेकिन हाँ, रिलीज करवा दिया। Okay, so how your family, when you told your family, so how they reacted, and what was the whole, situation there? So my family doesn't actually understand most of the times what I do exactly, because भोपाल में हैं उन लोग, और हमेशा से जॉब करने वाले लोग रहे हैं। तो उनको कभी ऐसा नहीं होता था कि समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह का कर रहा हूँ। पर जब एक बार गाने चलने लगे, हिट हो गए गाने, लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे वायु का गाना है या वायु ने गाना बनाया है, तो दे गॉट क्वाइट एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड थे वो लोग। और अभी भी एक्साइटेड रहते हैं जब भी गाना आता है। वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, कभी कभी तो टीवी पे कोई ऐड आ रहा होता है और उसमें कोई गाना चल रहा होता है, तो मेरे को फोन करके बोलते कि गाना तुमने गाया। तो मैं कहता मैंने नहीं गाया भाई। तो बोलते नहीं तुमको नहीं पता, तुमने गाया है। अच्छा ओके। So they get over enthusiastic after that. So yeah, that is how it has been. Okay, that's good. That's good. Okay, so you talked about Tanish Bagchi. So what was the how you met, and what was the total relationship going there? तो तनिष्क बागची के साथ मेरा जब मैं शुरू में, मतलब 2013 की बात होगी, तब तनिष्क बागची कुछ नहीं कर रहे थे बेसिकली। वो तो उसका छोटा सा स्टूडियो था, मेकशिफ्ट स्टूडियो में ही यूज्ड टू वर्क। एट दैट टाइम ही कॉल्ड मी टू राइट लिरिक्स फॉर समथिंग। मतलब ऐसे ही इसको कहीं से पता चला कि मैं लिरिक्स वगैरह लिखता हूँ, तो मुझे ऐसे ही बुलाया उसने। तो मैं गया, उससे मिला, और मिल के हमारी दोस्ती हो गई। तो हमने, मतलब उसके गानों पे किसी में लिरिक्स नहीं लिखी मैंने, ना ही कोई गाना अप्रूव हुआ जो मैंने लिरिक्स लिखी, पर हमें दोस्ती हो गई। तो मुझे भी ऐसा था कि तनिष्क बागची में थोड़ा बहुत काम कर लेता था। कुछ भी हमें, मेरे पास प्रोजेक्ट आता था, मैं तनिष्क बागची को बोलता था कि इसको प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बनाते हैं। एमटीवी के लिए 1-2 गाने हमने बनाए, कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले हमको, लेकिन हमने बनाए कुछ गाने शुरू में।
तो जब ऊपर ऊपर वाली बात आई, जब अधिकारी ब्रदर्स ने हमको कहा कि कोई गाना बना के तो वायरल के लिए, इंटरनेट के लिए, तो ऊपर ऊपर बढ़ाने की बात है। तो पहला नाम तनिष बागची था मेरे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं उसके साथ ही हैंग कर रहा था। हम रोज ही मिलते थे, रोज साथ में टाइम स्पेंड करते थे, और पैसे दोनों के पास नहीं होते थे, तो दोनों के दोनों अपने अपने समोसे खाते थे, चाय पीते थे और बातें करते थे, सपने देखते थे। तो वो सपने देख रहे थे, और फिर ऊपर ऊपर रहने दे करने का मौका मिला। तो ऊपर ऊपर रहने दे के समय भी तनिष वाज नॉट टू श्योर कि दैट सॉन्ग हैज गॉट एनीथिंग, बट इट काइंड ऑफ लिफ्टेड, इट गॉट एन अंडरग्राउंड हिट, एंड बन्नो तेरा स्वागत का करने का मौका मिल गया। बन्नो तेरा स्वागत करने के बाद फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, कर सकते हैं ये काम। और फिर ऑब्वियसली देन वी पार्टेड आवर वेज फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर डिफरेंट रीजंस। या अभी भी हम दोस्त हैं, लेकिन हम काम नहीं करते। मतलब मैं नहीं करता काम ज्यादातर, क्योंकि मुझे उसका काम करने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। ओके तो ओके, लाइक सो देयर इज अ पर्सनल रिलेशनशिप बट थोड़ा प्रोफेशनल कम है मतलब। प्रोफेशनल काम है। हमने काफी कुछ काम एक साथ किए हैं, जो काफी अच्छे काम किए। हमने अच्छे गाने बनाए बहुत सारे साथ में, जो जिसको हम लेकर काफी प्राउड हूँ, लेकिन कम ही करते हैं काम मतलब। ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका आपने कुछ फिल्म्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो मेन वहाँ डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि आप वो क्या वहाँ पे ऐसा होता है कि आप कि हाँ कि आप ये फिल्म के लिए प्रोजेक्ट है तो इसका ये प्रोसेस है, या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है ये प्रोसेस है, तो व्हाट द डिफरेंस देयर? See, the individual projects, which I would call independent projects, they are independent of the briefs. The different is of the brief only, ना। Like आप फिल्म में लिख रहे हो तो आपको आपकी कुछ briefs हैं, limited briefs हैं, जैसे फिल्म की सिचुएशन में फिट होना चाहिए, और अच्छा तो होना ही चाहिए, जो आप लिख रहे हो अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन फिल्म की सिचुएशन में फिट होना चाहिए। एंड देन मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स, फिल्म्स में ना गाने प्रमोशन की तरह यूज होते हैं यूजुअली आजकल वो जमाना नहीं रह गया कि गाने स्टोरी बताते हो या फिर किसी और तरीके से कनेक्ट करते हो। आजकल गाने सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज होते हैं, मेनली प्रमोशन ही है उनका पर्पस। So every song that you make for films, you have to make a hit song only. So your one brief is that you have to make a hit song, because they are putting so much money into it कि बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर आ रहे हैं, उनको करोड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो obviously they want to make sure कि अगर वो कर रहे हैं वो फॉर्मूला, तो they want to stick to a formula. When it comes to independent song, I'm not working to the brief. Okay. The brief is by my song, whatever I'm making, according to that the brief is decided. You know, like मैंने क्या गाना बनाया उसके हिसाब से वीडियो डिसाइड होगा, मैंने क्या गाना बनाया उसके हिसाब से प्रमोशन डिसाइड होगा। तो ये मेन फर्क है। तो I like to be in that space, more of independent space, and thankfully, touch wood, in my life, in my career, I've reached that point where I can demand that. So that is what is happening right now. That's great, that's great. And I think मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इंडिविजुअल सॉन्ग्स बनाओ तो यू गेट अ फ्री, बहुत ज्यादा आपको एक फ्री स्पेस मिलता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो गाना उस हिसाब से, है ना। सो वेयर डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर द इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड ऑल? इंस्पिरेशन चारों तरफ है यार सोनल, कहीं भी देख लो, कहीं भी मिल जाती है इंस्पिरेशन यार। तो भी आती है इंस्पिरेशन। So any backstory to any song and all? There are many songs with many backstories, so I don't know. I'll tell you, बन्नो तेरा स्वागत की स्टोरी तो मैं सबको ही बता चुका हूँ कि मैं मरने वाला था, वैसी सिचुएशन थी। बाकी कोई स्पेशल कोई गाना बताओ, मैं उसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ। If you have any song, let's go for बातें करो। Let's go for बातें करो। बातें करो doesn't have a very interesting backstory. It was just an outcome of a Sunday jam, और 26 जनवरी 2017 की बात है। मैं दिल्ली में था, मेरा एक दोस्त है राजर्षि शौनाल, उसके घर पे था मैं। राजर्षि शौनाल का बैंड है फरीदकोट करके। तो राजर्षि शौनाल, आईपी सिंह, दोनों दोस्त हैं मेरे। तो उनके राजर्षि के घर पे था मैं, और वैसे अपना गिटार ट्यून कर रहा था, प्लग कर रहा था। तो उसके प्लग करते करते उसने जो कॉर्ड्स बजाई, उसमें मैंने गाना शुरू कर दिया, बातें करो बातें करो। तो अच्छा लगा उसको, तो हमने सोचा चलो इसका एक ऐसी 1 मिनट सॉन्ग बना के डाल देते हैं इंटरनेट पे। तो 2 मिनट सॉन्ग बनाया था बेसिकली, जब बना था तो वो बनाया, और वो ऐसे इंटरनेट पे डाल दिया हमने। तो हालांकि वायरल कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, पर लोगों ने जितने लोगों ने कमेंट किया उनको सबको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा इस गाने को कंप्लीट करो, इस गाने को कंप्लीट करो। मैंने पहले कभी ऐसे नहीं किया था कि गाना बना के ऐसे डाल दिया हो। तो लोगों ने कंप्लीट करने बोला, तो मेरे पास वो गाना मैंने रखा अपने पास कि हाँ ये गाना में थोड़ा स्कोप है, कुछ कर सकते हैं इसका। फिर जब मैंने सोनी साइन किया, तो सोनी ने पूछा मुझसे कि तुम अपने जो इंडिविजुअल गाने करना चाहते हो लिस्ट दो, कौन से गाने करना चाहते हो। तो उसमें से हम क्यूरेट करेंगे कौन सा गाना हम पब्लिश करना चाहते हैं। तो उनको 3-4 गाने दिए, उसमें बातें करो भी था।
और वो मतलब वो तीनों चारों गाने उनको अच्छे लगे थे, तो वो तो सारे पब्लिश कर देते। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई एक पिक करो, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो लेट्स पिक बातें करो। और फिर अनफॉर्चुनेटली राजर्षि कुड नॉट प्रोड्यूस अ फाइनल वर्जन, देन वैभव पानी who used to be in the Yellow Diary earlier, now he works mostly with me, we are working together. So उसने प्रोड्यूस किया गाना, और फिर डारगाई ने गाना का वीडियो डायरेक्ट किया। मतलब डारगाई ने नहीं किया तो उसने प्रणीत प्रणीत सानी ने। लेकिन डारगाई के प्रोडक्शन हाउस था उनका, मतलब शी हैड हर क्रिएटिव इनपुट्स इन इट. So then I made a really good video, and it just picked well. So I'm thankful to Sony that they got me the best team that could happen for this song. So yeah. Yeah, great, great. Actually, मुझे ऐसा लगता है कि आपके it's totally my opinion कि मैं जब आपके इंडिविजुअल सॉन्ग सुनती हूँ, ठीक है, एंड इट फील्स लाइक अ कनेक्ट, यू नो, कि यार मतलब ये लूप पे चलना चाहिए, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं बातें करूँ, एंड इज अ सॉन्ग जो मैं रोज रात में सुन के सोती हूँ. इट्स लाइक अ दैट सॉन्ग टू मी, इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी. मतलब सोते सोते बातें तो नहीं करती हो तुम? नो नो नो. तुम्हें क्या पता होगा? It's a very amazing song, I tell you. Okay, so coming further, मैंने आपके बारे में जितना जाना है, तो you opted for graphic designing first, then you opted for mass communication, and now you are a full-time artist. तो आपको इन सब careers को opt करने के लिए what exactly excited you, you know? So I was never opting in career to start with. I was this very frivolous guy, I guess. I have always been this frivolous guy who's like जिसका कोई भरोसा नहीं, कल क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा है. तो मैं कभी करियर नहीं ऑप्ट कर रहा था. मुझे जो करने में मजा आया मैं वो करता गया. मतलब मुझे अगर करने में तो जब मुझे प्रोडक्शन करने में मजा आ रहा था तो प्रोडक्शन कर रहा था. जब मुझे गाने बनाने में मजा आया तो मैं गाने बनाने लगा. आगे चल के किसी और चीज में मजा आया कुछ और करने लगूंगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ही है, मजे ले लो यार. तो मैं मजे के लिए जीता हूँ जिंदगी. तो मैं जस्ट फॉर दैट रीजन, सो व्हेन आई स्टार्टेड एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ एक दो साल मैंने. फिर मुझे लगा कि मेरा मीडियम, मतलब आई कैन एक्सप्रेस more through more mediums. Like I wanted to change my medium, so that's why I went to pursue the film and video in like mass communications in Symbiosis. When I came out of that, गाना तो मैं लिखता ही था और ये चल ही रहा था, मेरा प्रोमो प्रोडक्शन में चल ही रहा था. तो मुझे जब लगने लगता है कि चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं, चीजें मूव नहीं कर रही हैं, या फिर कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर कुछ नया कुछ करने को नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ. तो देन आई लाइक ड्रिफ्ट आउट. सो दैट्स हाउ माय करियर, इफ यू कॉल इट करियर, हैज शेप्ड अप. कि और क्योंकि मैं काफी सारे विजुअल मीडियम से आया हूँ मैं, तो मुझे विजुअल मीडियम की वजह से मैं गाने भी जब सोचता हूँ तो मैं विजुअली सोचता हूँ गानों को. लिरिक्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो मैं मेरे लिए हर गाने सीन की तरह सोचता हूँ. मतलब सीन चल रहा है, उस सीन के अंदर चीजें हो रही हैं. तो that is how I think, so that has helped me in a way कि the way I look at songs, because मैं कोई ऐसा राइटर नहीं था कभी भी. ना मैं राइटर बनने की कोशिश की मैंने. तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था. मेरा सारा जो कुछ भी लिखता हूँ मैं प्योर इमेजिनेशन पे लिखता हूँ. और मेरी वोकेबुलरी भी वही है जो आम लोग यूज करते हैं, जो मैं जिन जैसे बात करता हूँ. तो वैसे ही रहा है मेरा. Impressive, I guess. Okay, so can you give any advice to the people who are want to come in these careers and make out of it? Mainly, like if you want to become an artist, yeah, mainly. See, मुझे यही लगता है कि देखो, लोग क्या बता रहे हैं, अगर आप वो करोगे तो फिर आप कंपटीशन में घुसोगे बेसिकली. तो फिर आपको जस्ट हैव टू बी बेटर देन देम. बट अगर आप वो करोगे जो आप खुद करना चाहते हो, तो एवरी डे यू विल ट्राई टू बिकम बेटर देन योरसेल्फ, यू नो. And you can only become better than yourself. You cannot become better than anybody else, because everybody comes from different background, everybody comes from different upbringing. So ये कोशिश करना है कि आप औरों से बेहतर बन जाओ. मतलब आपको जहां दूर तक लेके नहीं जाएगी. अगर कोई इंसान 10वें मील के पत्थर पे खड़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं 11वें मील के पत्थर पे खड़ा हूँ, तो मैं 11वें मील के पत्थर पे ही खड़ा हो जाऊंगा. और एक बार मैं 10वें मील उसको पीछे कर दिया, तो मेरे पास 11वें मील के बाद मेरे पास कुछ लक्ष्य नहीं आ गए. लेकिन अगर मैं खुद को कॉम्पीट करूंगा, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करूंगा, खुद कोशिश करूंगा कि मैं कुछ करना चाहूँ, तो
मैं 10वें पे पहुंच के 11वें पहुंचना चाहूंगा, 11वें पहुंच के मैं 12वें पहुंचना चाहूंगा, 12वें से पहुंच के मैं 13वें पहुंचना चाहूंगा, तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा। तो मेरी यही एडवाइस है कि कोई भी चीज करो जिंदगी में, वो चीज करो जो तुमको करने में मजा आता है, क्योंकि इन द एंड जिंदगी मजे लेने के लिए है जिंदगी ना। इन द एंड तो आपको Yeah. जिंदा क्यों है इंसान होता है? क्यों खुश रहे। और कुछ लोगों को लगता है कि पैसे कमा के इंसान खुश हो जाएगा, लेकिन पैसे वाले भी दुखी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, किसी आईफिल टावर के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। पर बहुत सारे लोग आईफिल टावर पे चढ़े हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सारे सारे खुश हैं जिंदगी में। Hmm. तो लक्ष्य बना के, खुशी को लक्ष्य मत बनाओ, खुशी को अपना हमसफर बनाओ। एंड देन नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो मेक श्योर दैट कि देखो रास्ता तुमको मिल जाएगा, पर तुम्हें ये मंजिल के लिए मत जियो जिंदगी को, रास्ते के लिए जियो। Hmm. You know, if you're enjoying the process, nothing that you do will fail you. Hmm. But if you're not enjoying the process and you're just trying to achieve something because you are supposed to achieve that, Hmm. chances are that you may fail. You know, तो मेरी यही एडवाइस है कि टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही तो तुम वो चीज एक्सप्लोर करो जो तुम्हें मजा आ रहा है। Hmm. और जितनी चीजें हो सके जिंदगी में एक्सप्लोर करके देखनी चाहिए, जो कुछ भी है जिंदगी में करके देखना चाहिए। हाँ, ये मतलब अगर आप सोचते हो कि आप गा नहीं सकते, गा के देखो। लेकिन अगर आप सोचते हो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, बजा के देखो, लेकिन कुछ करके देखो, पेंट करके देखो, सब करके देखना चाहिए। आप क्या पता आपकी क्या स्किल हो जो आपके आसपास किसी की नहीं हो, तो किसी ने आपको मोटिवेट ही नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है आप कर सकते हो। जैसे वो एक फिल्म, फॉर एग्जाम्पल वो एक फिल्म थी ना, लक्ष्य। हाँ उसमें ऋतिक रोशन को प्रीति जिंटा का बाप बोलता है कि भले ही घास काटने वाला बनो, लेकिन सबसे अच्छा घास काटने वाला बनो। हाँ, तो दैट्स अ थिंग। that's good. आपके मेरे दिमाग में एक सवाल है, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली वालों ने आपको कभी ये नहीं बोला कि आपको भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर, जो जनरली लोग बोलते हैं? तो बोला, बहुत बोला। मेरे को आईआईटी के लिए बहुत पुश करते थे, उनको लगता था आईआईटी क्लियर कर लूंगा मैं, और मेरे क्लास वालों को भी लगता था मैं आईआईटी क्लियर करूंगा, पर मेरा मन नहीं था बिल्कुल इंजीनियरिंग करने का। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग खराब है, इंजीनियरिंग की होती तो और भी अच्छा होता, मैं शायद स्मार्ट होता, पर मैं स्मार्ट नहीं हूँ। पर मेरा मन, तो मैं आईटी के फॉर्म के पैसे लेके पार्टी कर ली मैंने, ऐसा किया मैंने। तो बदतमीज तो मैं था। तो मेरी जब जब ये हो गया कि मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, तो मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई कि आईएएस कर ले, आईएएस कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मैंने अपनी मम्मी को एक दिन ऐसे बोला कि आपके आईएएस को कितने लोग जानते हैं? तो बोलती है कि हम सब जानते हैं, सारे ऑफिस वाले जानते हैं, जितने लोग काम करते हैं सब जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, और अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? तो बोलते हैं कि सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को तो कौन नहीं जानता। तो मैंने कहा तो फिर अमिताभ बच्चन बनने को बोलो ना मेरे को, ये आईएएस बन के क्या मिलेगा? दैट्स क्यूट। ओके, सो ये आप मुझे ये जानना था कि आपका वायु नाम कैसे पड़ा? आप जैसे मैंने जाना आपका नाम ऐसे वैभव श्रीवास्तव है, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वायु? नहीं, मेरा नाम वायु था। मेरे पापा ने मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव रख दिया जब मुझे स्कूल में एडमिशन कराने गए वो, क्योंकि उनको ओके। लगा शायद वायु श्रीवास्तव डजंट हैव द वेट। सो पहले जब मैं पैदा हुआ था, तो जैसे लोग घर पे नाम बुलाते हैं ना, कोई नाम, पहला नाम जो आपको देते हैं, तो मुझे वायु ही दिया गया था पहला नाम। अच्छा। तो घर पे सब मुझे वायु वायु करके बुलाते थे, लेकिन मेरे पापा जब मेरे को एडमिशन कराने लेके गए स्कूल में, मेरे बड़े भाई का नाम गौरव है, तो ये जरूरी होता है ना कि दो बच्चों का नाम या तो राइम करे, ताकि अगर आप कभी जिंदगी में फैमिली सॉन्ग बनाना पड़े तो कम से कम बच्चों का नाम तो राइम कर रहा हो, ताकि आप कभी कुंभ के मेले में बिछड़े हो तो गाना गा के बुला सको। तो whatever logic was to that, he changed my name to वैभव। ओके। बट घर में से मुझे वायु ही बुलाया हमेशा। सब लोग मुझे वायु के नाम से जानते हैं, वैभव के नाम से सिर्फ मुझे बैंक वाले बुलाते हैं, या फिर कहीं किसी को ऑफिशियल काम होता है तो बुलाते हैं। ओके ओके ओके। सो कि भोपाल में आप रहते थे व्हेन यू शिफ्टेड टू मुंबई इन 2009 only or before that? Yeah, 2009 only. I never lived in भोपाल basically. भोपाल में मैं मुश्किल से 1-1.5 साल रहा होऊंगा। अच्छा। मैं पैदा हुआ था एक जगह रीवा करके, वहां पैदा हुआ था मैं, तो काफी समय मेरा वहां गया। ओके। फिर मेरे माँ बाप शिफ्ट हो गए भोपाल में, फिर मैं शिफ्ट हो गया पुणे में। तो मुश्किल से 1-1.5 साल हुए होंगे जब मैंने भोपाल में रहा होऊंगा। ओके। तो आपकी कोई ऐसी स्टोरीज जो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा स्टोरी जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? इंटरेस्टिंग स्टोरी? Yeah, because they would love to know. कल पूछो स्टोरी, मेरी सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग है, तुम पूछो सही कोई किस बारे में स्टोरी बताऊं तुमको मैं? आपका जिसका मन उस बता दो यार, हम लोग तो सिर्फ सुनने बैठे हैं। तो ऐसे कैसे कोई भी स्टोरी बता दो तुमको? something around your school days or college days. मैं बहुत सीधा साधा बच्चा था यार। मैं अपने स्कूल में बिल्कुल पीछे चुपचाप बैठता था, पीछे वाली सीट पे।
पीछे वाली बेंच पे, सॉरी, और बैक बेंच पे बैठता था। और मेरे एक टीचर थे, वो मैथ के टीचर थे, वो हर हफ्ते हमारी कॉपी जांचते थे। तो मैं स्ट्रेटेजिकली बैठता था कि पिछली बार उन्होंने यहाँ से शुरू किया है, तो यहाँ से पहुंचते पहुंचते इतनी दूर आने तक घंटी बज जाएगी, तो मुझे अपनी कॉपी। तो वैसे हर बार कि पिछली बार यहाँ से शुरू किया है तो अब इस बार यहाँ से शुरू करेंगे, फिर पिछली बार पीछे शुरू किया था तो अब आगे शुरू करेंगे। तो ऐसे मैं स्ट्रेटेजिकली हर बार जाता था कि मैं कैसे बचूं कि मुझ तक पहुंचते पहुंचते उनकी कॉपी खत्म हो जाए, मतलब घंटी बज जाए। तो मैंने बहुत समय तक बचता रहा मैं उनसे कॉपी जचवाने से, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं करता था। तो फिर एक बार उन्होंने पकड़ लिया, एक बार उन्होंने कहा कि मैं इस हफ्ते सबकी कॉपी चेक करूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, सबकी कॉपी चेक होगी। तो वो दिन है कि मैंने 3 दिन मतलब फ्राइडे को चेक करने वाले थे, उन्होंने मंडे या ट्यूसडे को ऐसे अनाउंस किया कि मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। तो मैंने 2 दिन स्कूल से बंक मार के सिर्फ कॉपी भरी मैथ्स की, सारे के सारे जितने इक्वेशन थे सब सॉल्व किए, सब कुछ कर डाला, 2 कॉपियां भर डाली पूरी मैथ की, ताकि अगर इस बार पकड़ लिया तो कम से कम बेइज्जती तो ना होगी। कुछ भी नहीं किया, मैं बस कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती थी उससे पहले। तो मैंने पूरा ऐसे पूरी नोटबुक पूरी भर डाली, पूरे मैथ पूरी किताब सॉल्व कर डाली मैंने 2-3 दिन के अंदर। और फिर जब मैं लेके गया उनके पास, और इस बार मैं सबसे आगे बैठा, जहां से मुझे लगा था यहाँ से शुरू करेंगे, उन्होंने बिल्कुल उल्टे तरीके शुरू किया, जहां मैं आगे बैठा था तो उन्होंने पीछे शुरू किया। फिर भी किस्मत से मेरा नंबर आ गया घंटी बजने थोड़ी देर पहले। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं खुश था कि मेरी कॉपी जचने वाली है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करके लाया था। तो उन्होंने वो कॉपी ली मेरी, और मैंने सारे के सारे सवाल अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग बना के लिखा था, सब कुछ प्रॉपर करके, डायग्राम वायग्राम सब प्रॉपर। 3 दिन बैठ के मैंने सिर्फ यही किया था ना, तो करके दिया था। उन्होंने आखिरी पन्ना खोला, साइन किया और दे दी मेरे को कॉपी। मैंने कहा यार देख तो लो बाकी की। तो मैं सेम हमारे स्कूल के टाइम में भी सेम चीज होती थी। हम पूरा पूरा बना के जा रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, लास्ट पेज पे सिग्नेचर कर रहे हैं, दे आर गॉन, लेट्स एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यही करना था, तो मैंने किया। पर उससे क्या हुआ ना, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए मैथ में उस साल। मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि प्री बोर्ड में मेरे को मेरा कॉपी जांचने के बाद मैथ वाले टीचर प्री बोर्ड का मेरा पेपर क्लास में लेकर आए, दिखाने के लिए कि मैथ ऐसे सॉल्व की जाती है। तो मैंने कहा उस दिन मैं एब्सेंट था। सॉरी इट्स ओके। ओके, सो आई वांटेड टू आस्क कि अगर हम आज आप मुंबई में रहते हो, अगर हम आपसे 10 साल 20 साल पहले जाएं और वी सी वैभव और रेवा, इफ दिस टू मीट, तो क्या बातें होंगी? कुछ आइडिया है आपको? हाँ, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं। मतलब अगर मैं पिछले जहाँ पे मैं जब मैं तब था, तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसको मैंने लाइफ में सीरियसली नहीं लिया, जो मुझे लगा नहीं कि मुझे करना चाहिए या इसको चेज करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। कई कई चीजें ऐसी होती है ना लाइफ में, आप जब कर रहे हो तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप उसको लगन से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ में वो हेल्प करती है। कुछ भी आप सीख रहे हो, खाना बनाना भी सीख रहे हो तो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रही है। आप कुछ भी करना सीख रहे हो जिंदगी में। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैंने कई चीजें जो मैं सीखते सीखते छोड़ दी, या फिर कुछ चीज परस्यू कर रहा था लाइफ में, वो बीच में छोड़ दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं कई बार। तो अगर मैं वापस मिलूं अपने उस बचपन से, तो मैं बोलूंगा कि भाई जो तू कर रहा है तू करता रहे, छोड़ मत इसको। तो परस्यूट इज वन थिंग which I will always tell my younger self to do. Okay, so do you often visit Bhopal or Rewa now? So I don't go to Rewa. I don't मतलब पहले हमारा घर था वहां पे, वही बेच दिया हमने। तो मतलब मेरे माँ बाप ने था तो क्या ही घर था। और भोपाल में ही है, तो भोपाल में हर दिवाली तो जाते ही हूँ मैं। पिछले लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में तो पूरे लॉकडाउन में भोपाल में ही था, एक कमरे में बंद था। मुझे 14 दिन के लिए वो भी हो गया था, कोविड भी हो गया था। तो मैं तो भोपाल में रह के आया मैं प्रॉपर। How was the feeling? कितने सालों बाद जा रहे हैं and all? नहीं, भोपाल में हर साल जाता हूँ। तो वैसे कोई That's good. Okay. भोपाल का ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अच्छा तो लगता है भोपाल में। इस बार मैं गया था दिवाली पे, तो मेरे कई सारे स्कूल के दोस्त भी थे जो थे भोपाल में, तो उनसे मिल पाया। पर मुझे काम था, इसकी वजह से मुझे जल्दी वापस बॉम्बे आना पड़ा। फिर मैं बॉम्बे आया तो काम भी कैंसिल हो गया, तो मैंने काफी गालियां दी अपनी किस्मत को। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे हर किसी का होता है, इन जनरल हम देखते हैं ऐसे कि बहुत लोग किसी भी जॉब में जाते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, सो दे हैव अ ड्रीम, अ विजन होता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, या फिर आई हैव टू डू दिस थिंग एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो आपके हिसाब से वो चीजें क्या है आपके लिए, एंड हैव यू अचीव्ड इट येट? नहीं, तो मैंने तुमको पहले ही बताया ना, पहले ही तुमसे कहा कि मैं मतलब ऐसे गोल सेट करके तो नहीं चलता, मैं ऐसे मजे के करता
सकता हूँ चीजें। तो मेरे ऐसे गोल्स नहीं थे कि मुझे ये करना है और मैं करके रहूंगा। ऐसे होने चाहिए, लोगों के गोल्स होने चाहिए, अगर आपके गोल्स है तो अच्छी बात है। पर मेरे को ऐसे गोल्स नहीं थे स्पेशल कि मुझे ये ऐसा अचीव करना है। मैं गाने बनाना चाहता था। मतलब मैं बहुत अपने आप को फकीर टाइप का इंसान समझता हूँ कि मतलब वैगाबॉन्ड काइंड ऑफ पर्सन, जो मतलब ऐसा कुछ लेके नहीं चल रहा हूँ कि मुझे कुछ करनी है। पर है कुछ जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ, पर वो मैं कर लूंगा, मुझे पता है। मतलब 2-3 साल में मैं कर भी लूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो वो बताने लायक कुछ नहीं है ऐसा, पर मैं मतलब ऐसी चीजें जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हैं कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं कर लूंगा। और काफी कुछ चीजों की तरफ मैंने अभी कदम बढ़ाए भी हैं, कुछ चीजें मैं कर भी रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप देखो तो कुछ एक अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, ना सिर्फ गाने के बल्कि और भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद भी मतलब आई एम ग्रोइंग, आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर, like making my presence in independent right now. So I want to make my presence in independent scene more prominent, more मतलब ज्यादा और भी करना चाहता हूँ मैं prominently independent music। तो उसकी तरफ मैंने अभी I have taken the first step where I'm working towards making more and more music of my own. सो आपने भी अपने म्यूजिक के बारे में बात की, सो आई वांटेड टू नो कि आपकी नेक्स्ट सिंगल कब आ रही है? देखो अगले साल ही आएगी शायद, अभी क्योंकि तो वीडियो शूट की बात चल रही है, अभी तो कॉन्सेप्चुअलाइज हो रहे हैं। तो 3 गाने हैं जिन पे वीडियो की बात चल रही है, अलग अलग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं उन पे। तो वो एक चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से इस साल अगर बनेंगे, दिसंबर में अगर शूट भी होते हैं तो जनवरी फरवरी से पहले तो नहीं आएंगे। तो वैसे चल रहा है, बट देखते हैं। ईगरली वेटिंग फॉर दोस। बिल्कुल। या मी टू। ओके, सो कमिंग टू द वेरी लास्ट पार्ट, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि how Vaibhav as a person is, why you are Vaibhav as a person? Vaibhav is Vaibhav is very Vaibhav is an introvert. Vayu is an extrovert. Okay. Two different things. Split personalities. Split personalities, right? Right. Yeah. So I don't know what kind of, like, people can only tell me what kind of person I am. So नहीं, but according to you, what kind of person you are? मतलब अगर आपके हिसाब से मैं जानूं, तो आप अपने आप को क्या क्या समझते हैं? Somebody who wants to enjoy life, that's it. Good one. Good one. बाकी तो मुझे नहीं पता यार कौन से कैसे अपने आप को डिफाइन करूं मैं थोड़ा शाई टाइप का भी हूं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं मैं, पर खुश इंसान हूं मैं, खुश मिजाज हूं, पता नहीं शायद। हाँ, That's good, that's good. और मुझे पता है आपसे ऐसी वाइब आ रही है कि यार मैं कभी भी आऊं मुंबई तो मुझे आपसे मिलना है, बिल्कुल। हाँ, श्योर। तुम रहती कहाँ हो? मैं बेसिकली आई एम इन बिहार राइट नाउ। वेयर इन बिहार? भागलपुर। भागलपुर? या भागलपुर is quite famous for something. What is it famous for? लोग भाग जाते हैं वहां से। सिल्क सिटी। It's a सिल्क सिटी, इट्स अ सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। oh silk city. Yeah. I guess yeah. यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन बहुत होता है। सो नाउ वी हैव अ वेरी शॉर्ट सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे I'll give you some options and you have to choose one of them, okay? So this or that वाला फेज है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ तो पैटर्न एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। It's a very fun thing. Okay. Let's see. First question. Vayu or Vaibhav? Vayu. Okay. Tanishq as a friend or Tanishq as a co-composer? Tanishq as a friend. Okay. Indore or Mumbai? मुंबई यार। नहीं, ओ इंदौर भी अच्छा है यार। इंदौर पीस है यार। इंदौर ना थोड़ा चिल्ड आउट है। पर जगह मुंबई में स्कोप है। मुंबई में आई थिंक इफ आई हैव टू चूज probably 2 months in Indore and 10 months in Mumbai. That's a difficult choosing then, I guess. Yeah. Okay. Cricket or football? Cricket, yeah. Cricket. All-time cricket fan. Yeah, I always watch cricket only. So I have some questions for you. ठीक है कि मतलब you have to give a very random answers to that. Okay. Random answers. Yeah. But if you ask me, yeah. मतलब क्या गाय, मतलब कैसे रैंडम आंसर कुछ भी बोल दूं, मतलब जो भी तू सवाल पूछोगी आपके मन में जो आए। Okay, apart from singing or composing, what would Vayu do in his free time?
I'm mostly composing. Like I'm not a singer. I don't call myself a singer. Sometimes I love to sing because मुझे कभी अपने गाने गाने में मजा आता है. पर usually मैं compose ही कर रहा होता हूँ. ओके सो गा- तो आपने ये सिंगिंग पिक्चर में कैसे आया? आपने कहा कि आप सिंगिंग नहीं करते हो और आप कंपोज करते हो, तो हाउ डज द सिंगिंग कम टू द फ्रेम? आपके गाने So I वाले do sing my songs. Like जब आप कॉलेज वॉलेज में होते हो तो आप परफॉर्म करते हो तो अपने गाने पे परफॉर्म करते हो तो ऐसे तो मैं अपने गाने गाता था. तो जब मैंने सोनी म्यूजिक ज्वाइन किया, इनफैक्ट उसके पहले ही मुझे मौका दे दिया था इन्होंने. सचिन जिगर ने अपनी श्री में गाना गवा दिया था मेरे को. हालांकि वो एल्बम में नहीं था गाना, लेकिन फिल्म के टाइटल में था वो गाना. अच्छा तो वो गाया था मैंने. तो मेरे गाने का इनफैक्ट बीट पे बूटी पे भी गाया मैंने. बीट पे बूटी में भी कुछ मतलब पार्ट्स गाए, मेन पार्ट्स में गाए. तो मेरे को सचिन जिगर ने गवाया मुझसे सबसे पहली बार. उसके अलावा बातें करो, मतलब मैं गाता, थोड़ा बहुत गाता था. मतलब नॉट, आई नॉट कॉल माई सेल्फ सिंगर, नॉट दैट गुड. बट जो इजी इजी गाने में अपने गा लेता हूँ तो वो गा लेता था. वो मेरी आवाज लोगों को पसंद आई तो मैंने रिलीज कर दिया. ओके इफ बॉलीवुड वुड नॉट हैव हैपेंड, व्हाट वुड वैभव बी नाउ? If Bollywood had not happened at all, या so probably I would be a promo producer making promos only, or maybe in working in an ad agency as a copywriter or something. ओके हाउ डज बायू प्लेलिस्ट लुक लाइक? My playlist looks like the randomest playlist in the world. Like I'm listening to randomest thing. Like कुछ भी जो मुंह में आता है वो बोल के मैं सुन रहा होता हूँ गाने. ओके तो और ज्यादातर मेरी प्लेलिस्ट बोरोड प्लेलिस्ट होती है. मैं लोगों से बोलता हूँ तुम सुनाओ कुछ, तुम सुनाओ, तुम लगाओ कुछ म्यूजिक. तो मेरी प्लेलिस्ट में हार्डली कुछ होती है. पर बचपन की मेरी प्लेलिस्ट काफी गजल हुआ करती थी. जब मैं बच्चा था तो मैं सबसे ज्यादा गजल सुनता था. आई एम मतलब अ मैं आई गजल वाज फैन हार्ड. टू. आई एम अ गजल फैन. नहीं, तो जब भी कभी मिलेंगे तो अपन गजल ही गाएंगे बैठ के. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वन प्रोजेक्ट ऑफ योर्स ऑन व्हिच यू वुड लव वर्किंग द मोस्ट? The one project I loved working on the most. या तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें मतलब मजा आया काम करके, जिसको करने में बहुत फन आया. पर मेरे ख्याल से रेड एफएम का जिंगल जब बनाया था मैंने तनिष्क के साथ बैठ के, तो वो काफी कोकी था. काफी ज्यादा कोकी था. मतलब उसको आउट ऑफ द क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ द बॉक्स कोकी था वो गाना. तो वो करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, क्योंकि उसमें काफी चीजें मैंने ऐसी राइटिंग में ऐसी यूज की थी जो बहुत ही नई थी. जैसे एलोवेरा वगैरह मैंने यूज किया था वर्ड. तो वो करने में काफी मजा आया था. ऐसे वैसे हैं काफी सारे. ऊपर ऊपर रहने दे करने में बहुत मजा आया था, क्योंकि वो तो गाना भी वो खुद ही बनाया था, वीडियो भी खुद ही डायरेक्ट किया था. तो वो भी करने में काफी प्रोसेस था जिससे मजा आया था मुझे. तो यार मेनी प्रोजेक्ट्स. बट ओके चलो, मैं मजे के लिए करता हूँ काम यार सोनल. मैं तो सब में मजे. मैं समझ गई. एंड दैट आई लव अबाउट यू द मोस्ट. मैं सच में मैं ओके सो अब हम हमारे लास्ट में आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के. सो आप बातें करो प्लीज. क्या करूं? बातें करो. बातें करो. बातें. मेरे लिए तुम काफी हो. बातें करो गाओ आपको, या फिर आपको जो पसंद है वो गा दो, कोई दिक्कत नहीं है. बातें करो तो मेरी वॉइस में है ही. मतलब इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगा बातें करो आपको. ओके पर जो मेरे लिए तुम काफी हो गाना था जो शुभमंगल ज्यादा सावधान में गया था, वो पहले मैं उसको मैं अपना पहला सिंगल बनाना चाहता था. ओके It went in a film and it got sung by Ayushmann, which is done well, which is done really good. But that was my first. बहुत दिल से जुड़ा हुआ था उस गाने से मैं. मतलब वो गाना मैंने 7 साल संभाल के रखा था. उसके बाद उन्होंने शुभमंगल ज्यादा सावधान को दिया हमने. ओके तो इस तरह गाना, तो वही गाता हूँ मैं. या बिल्कुल. वो गाना जैसे बनाया था और जैसे मैंने आयुष्मान को सुना था वैसे ही आपको सुनाता हूँ. सुनाता हूँ. तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी. मुझे आगे तेरे साथ बहना है. हाँ जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी. मुझे हर पल तेरे साथ रहना है. हाँ तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे. आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी. दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियां भगा देंगी हर गम को. तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो. वो मेरे लिए तुम काफी हो. वो मेरे लिए तुम
काफी हो। पूरा कर दो। सास माँ के हैं हम दो सितारे की टकराते हैं टूटते हैं बेचारे मुझे तुमसे, पर ये कहना हाँ के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो घिसने रगड़ने में छिलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। दिल जो ढला तेरी आदत में शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। Thank you. Wow. So Wow. this You song, should produce one of these songs in your voice, please. maybe probably later, I don't know. ये गाना मैंने प्रेजेंट ही ऐसे किया था टेबल बजा के। अच्छा। मतलब मैंने अपने सारे ज्यादातर गाने ऐसे टेबल बजा के प्रेजेंट किए, बहुत सारे ज्यादातर गाने। So yeah. नहीं, मैं तो आपको बोल रही हूँ प्लीज ये गाना आप लाओ, ठीक है? I want that. I don't know about So anyone else, but I want that. I have to talk to T-Series because now they have the rights. But yeah, cool. I'll do it. Sure. Yeah. Got it. Okay. So is a very last question कि अगर you want to tag a person, you have to tag a person who you think is the best fit for this podcast. Who would want to go for this podcast? Yeah. Who or what somebody you should totally take on podcast is what you're saying, isn't it? I'm basically I'm saying कि who you think can be best for this podcast, as I can interview him or her. You want somebody who writes, who's in the industry. Why don't you try Priya? In any field. Oh, Priya? Which one? Priya Malik. Her name is Priya Malik only, na? Yeah. Okay. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much, Vayu, for coming here, and thank you for so much for precious time. And and I also want to thank all the audience here for joining in. And please like, share, subscribe to the channel if you like this podcast. Yes, please. Thank you, Sonal, and thank you, Gautam, for having me on Gupshup with Pals. I really had fun, too much fun. Sunday made. अब सुबह तो बन गई, अब शाम के लिए कुछ और ढूंढता हूँ मैं, पर ठीक। Thank you so much.